सो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स। सो दीज आर द पॉइंट A B C D E and these are their coordinates. Decide whether the pair of segment given below the table are congruent or not. It means we need to check whether these two pair are congruent or not, and these two pair and these two pair congruent है या नहीं, ये कैसे डिसाइड करते हैं? If the length of two sides are equal, then we call those segments as a congruent. It means if the length of DE is equal to length of AB, then they are congruent. So we need to find out the length of both of them. And what is length? Your length is nothing but the distance between D and E. So length of DE is distance between D and E. ठीक है, सॉल्व करें. Okay, let's start. So हमें क्या करना है? सबसे पहले लेंथ निकालना है. तो लेंथ ऑफ DE is equal to distance between D and E. And distance between D and E कैसे निकालते हैं? उनके कोऑर्डिनेट से. So D का कोऑर्डिनेट क्या है आपका? -7. E का कोऑर्डिनेट है 9. So क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट of D is -7 and coordinate of E is 9. Since 9 is greater than -7, therefore length of DE is equal to 9 minus -7, which is 9 plus 7 equal to 16. मेरा फर्स्ट आ गया DE. Similarly, let's figure out for AB as well. So क्या हो जाएगा? Length of AB is equal to distance between A and B. And now coordinate of A. So coordinate of A is आपका ये कितना है? -3 है. And B कितना है? 5. A is -3. Similarly, coordinate of B is 5. Since 5 is greater than -3, therefore length of AB is equal to 5 minus -3, which is nothing but 5 plus 3 is your 8. This is 8 and this is 16. Are they equal? No. So what we can say? Therefore length of DE is not equal to length of AB. Since their length are not equal, it means they are not congruent. So final statement लिख दो. Therefore segment DE is not congruent to segment AB. This is your first question. Let's talk about the second one. इसको सॉल्व करेंगे. सेम चीज है. सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ BC इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन B एंड C. अब क्या लिखेंगे हम? कोऑर्डिनेट ऑफ B is, B का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 5. Then coordinate of C is, C का कोऑर्डिनेट दिया है 2. Since 5 is greater than 2, therefore length of BC क्या हो जाएगा आपका? 5 minus 2 equal to 3. Correct? Similarly, we need to figure out the length of AD. अब length of AD कैसे निकालोगे? Length of AD is equal to distance between A and D. So coordinate लिख लो अभी फिर से. So now your coordinate of A is what? -3. And coordinate of D is your -7. A and D पता है. So length of AD आपका हो जाएगा. हाँ, सबसे पहले यहाँ पे बिगर कौन सा है? -3 और -7. -3, right? Since -3 is greater than -7, then for length of AD is equal to -3 minus of -7. So this is nothing but your -3 plus 7. कितना है आपका? 4, right? This is 4 and this is 3. Are they equal? No. So what you can say? Since length of BC is not equal to length of AD, therefore segment BC and
segment AD are not congruent, right? फर्स्ट भी congruent नहीं है, सेकंड भी नहीं है. Let's talk about third one. So थर्ड में क्या आएगा? हमें क्या चाहिए? लेंथ ऑफ BC is nothing but distance between B and E. Sorry, length of BE. Your length of BE is distance between B and E. Now, coordinate of B is, आपका B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 5. फिर कोऑर्डिनेट ऑफ E is, E का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है हमें? 9. ठीक है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे? सिंस 9 is greater than 5, therefore length of BE is 9 minus 5, which is 4. अब B आ गया. नेक्स्ट क्या चाहिए? सेगमेंट AD की बात हो रही है अभी, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? अब लिख दो लेंथ ऑफ AD इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन A एंड D. सो आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे. कोऑर्डिनेट ऑफ A is, A का कोऑर्डिनेट -3 दिया है. कोऑर्डिनेट ऑफ D is, आपका D कोऑर्डिनेट -7 दिया है. Since -3 is greater than -7, therefore length of AD is your -3 minus of -7. -3 plus 7, which is 4. This time your length of BE and length of AE both are same. So हम लिख सकते हैं since length of BE is equal to length of AD, therefore segment BE is congruent to segment AD. ये हो गया आपका फाइनल. आप इसको एक भी दे सकते हो, जैसे अभी हमने इसका वैल्यू निकाला था, we can say 1 एंड इसकी वैल्यू हम बोल सकते हैं 2. तो यहाँ जब हमने इक्वल लिखा, we can say from 1 and 2. ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया. सिंपल है. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4. क्वेश्चन नंबर 2 and 3 is all about your मिड पॉइंट. मैं आपको सिखा देता हूँ. सो पॉइंट M is the मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB. सो लेट्स से हमारा कोई एक सेगमेंट है A and B, okay, and M is the midpoint. So what is midpoint? Midpoint एक ऐसा पॉइंट होता है जो किसी भी सेगमेंट को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है. मिड है ना इसके पे. So your AM will be equal to your MB और AM will be also equal to 1/2 into AB, क्योंकि ये क्या है? इसका एग्जैक्टली हाफ है. ठीक है, तो हम मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. क्या लिखेंगे? AM इक्वल टू 1/2 into AB. स्टार्ट करें. तो हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले वो लिख दो. लेंथ ऑफ AB हमें दिया हुआ है ना. लेंथ ऑफ AB कितना दिया है? 8. सो दिस इज योर गिवन. उसके बाद हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ AM इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ ऑफ AB. सॉरी, लेंथ ऑफ AM इक्वल टू 1/2 इंटू AB, क्योंकि वो उसका हाफ होता है. इसका रीजन क्या है? M is midpoint of AB. ये इसका रीजन हो गया जो आपको दिया था. अब यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप. सो 1/2 AB की वैल्यू मुझे दिया हुआ है 8, कैंसिल कर दिया, कितना आ गया? 4. सो लेंथ ऑफ AM इक्वल टू 4. दैट्स इट. आप लिख दो यहाँ पर चाहिए तो लेंथ ऑफ सेगमेंट AM इक्वल टू 4. ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 2. सिंपल है ना. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आपको? P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD. सो लेट्स से मुझे कोई सेगमेंट है C and D. इसका मिड पॉइंट क्या दिया है? P. P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB. इसका मतलब क्या हुआ? CP इक्वल टू 1/2 CD होगा, राइट. इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. हमें क्या निकालना है? CD की वैल्यू फाइंड आउट करना है और CP की वैल्यू दिया है इस टाइम पे. आप क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ CP is given as 2.5. This is my given. ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. लेंथ ऑफ CP इक्वल टू क्या होगा?
1/2 इंटू लेंथ ऑफ सी डी, राइट। रीजन क्या है यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, P इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये हो गया मेरा रीजन। अब क्या 2 इधर भेज दो क्योंकि हमें क्या निकालना है, सी डी की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 लेंथ ऑफ सी पी इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी, इनकी वैल्यू रख दो। तो 2 इंटू सी पी की वैल्यू कितनी दी थी आपको, 2.5 दिया था, वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड दिस इज नथिंग बट योर लेंथ ऑफ सी डी। सो योर लेंथ ऑफ सी डी, इनको मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 5। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, if AB equal to 5 centimeter, BP equal to 2 centimeter and AP equal to 3.4 centimeter, compare the segments। कंपेयर करना मतलब you just have to tell which one is greater than, smaller and smallest। कैसे करेंगे, सिंपली जो सबसे पहले दिया है ना आप वो लिख दीजिए, मतलब यहाँ लिख दीजिए लेंथ ऑफ AB is equal to 5 centimeter, लेंथ ऑफ BP is equal to 2 centimeter, right, and length of AP is given as 3.4 centimeter। ये हमको दिया हुआ है। ऑर्डरिंग क्या है इसमें, ये सबसे बिगर है, उसके बाद ये, फिर ये, वो चीज लिख दो। Since phi is greater than 3.4 which is greater than 2, correct, so therefore length of phi किसकी वैल्यू है, AB, so length of AB is greater than length of AP which is greater than length of BP, correct। ये लेंथ है, इस लेंथ के सेगमेंट कैसे आएंगे, सो सेगमेंट ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन सेगमेंट ऑफ ए पी विच इज ग्रेटर देन सेगमेंट ऑफ बी पी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज 3 सेगमेंट्स। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द फिगर। ये हमें एक फिगर दिया हुआ है जहां पे टी एस आर पी क्यू इनकी पोजीशंस दी हुई है, राइट। एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे आरपी। आरपी कहां पे, ये मेरा आरपी है, रे, इसके अपोजिट रे की बात हो रही है, तो अपोजिट क्या आएगा, आर एस और आर टी। ये आरपी मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा था, हमें इसका अपोजिट चाहिए, हम क्या करेंगे, इस साइड आएंगे ना। सो रे आर एस और आर टी are the opposite ray of RP, so क्या लिखेंगे यहाँ पे, ray RS और ray RT, RS और RT इसका अपोजिट क्या होगा, इस साइड आएगा, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड रे RP। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो, राइट। तो हमारा रे PQ कहाँ पे है, ये हमारा PQ है। उसके बाद क्या बोला है, RP, तो RP यहाँ से यहाँ तक है, PQ यहाँ तक है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, PQ आएगा ना, क्योंकि PQ इसका पार्ट है भी है और यहाँ का भी पार्ट है। सो क्या लिखेंगे, देयरफॉर रे PQ, क्लियर है, यहाँ पे क्या आंसर है, PQ। नेक्स्ट, राइट द यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट PQ एंड सेगमेंट QR। यहाँ किसकी बात हो रही है, सेगमेंट की, राइट, रे नहीं है। तो सेगमेंट PQ कहाँ है आपका, ये मेरा सेगमेंट PQ हो गया। एंड नेक्स्ट सेगमेंट क्या है, QR, यहाँ से यहाँ तक QR है, ये पूरा है यहाँ तक है। इनका यूनियन करेंगे तो क्या होगा, यूनियन क्या होता है, जो सब मिला के बने, राइट, कंबाइन करके बड़ा से बड़ा जो मर्ज होता है हमारा। तो ये PQ है, ये QR है, इसका यूनियन क्या होगा, ये पूरा, राइट। सो वी कैन से सेगमेंट QR क्लियर है, इसका आंसर क्या है आपका, QR है। नेक्स्ट, स्टेट द रेस ऑफ विच सेगमेंट QR इज अ सबसेट। QR is a subset of race। सबसेट ऑफ रेस, पहले तो QR का खुद होता है, क्योंकि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, राइट। एंड देन रे QR एंड रे QS एंड रे QT, करेक्ट। या फिर हम इसको इस डायरेक्शन में भी लिखेंगे तो भी आएगा, इतना लिखो अभी के लिए, ठीक है। नाउ फिर
राइट पेयर ऑफ अपोजिट रेस विद कॉमन एंड पॉइंट आर। आर कहाँ पे हमारा, यहाँ है, इसका अपोजिट रे लिखना है तो वह आरपी और आरएस लिख दो। राइट, तो हम क्या लिखेंगे, रे आरपी एंड रे आरएस, आरपी एंड आरएस। ठीक है, सिक्स में क्या दिया हुआ है, राइट एनी टू रेस विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। यहाँ पे इससे कोई भी दो रे लिखने हैं तो हम क्या लिखते हैं, एस आर और एस टी। सो रे एस आर एंड रे एस टी। ठीक है, लास्ट में क्या बोला है, राइट इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी। एस पी एंड एस टी, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या, है, क्या है, पॉइंट एस। राइट, सो पॉइंट एस इज द ओनली इंटरसेक्शन ऑफ एस पी एंड एस टी। क्या लिखेंगे, देयरफॉर पॉइंट एस, इसका आंसर क्या है, पॉइंट एस। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फिगर। ये हमें एक नंबर लिख दिया हुआ है, नंबर लाइन दिया हुआ है जहां पे कुछ पॉइंट्स है एंड उनके कोऑर्डिनेट दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोला है, स्टेट द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी। बी से इक्विडिस्टेंस, बी कहां पे हमारा, ये है, राइट, यहां से इक्विडिस्टेंस की बात करते हैं। तो यहाँ लेफ्ट में अगर मैं आता हूँ 2 यूनिट तो मुझे क्या मिलता है, ए। इसके लेफ्ट में 2 यूनिट जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, सी। इट मींस ए एंड सी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी। राइट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 2 है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 2 है। दैट्स द वन। सेकंड, बी से और इधर जाएंगे क्या आएगा, वी आ रहा है, वी आवा वी, और आप इधर आओगे तो क्या आएगा, पी। इट मींस वी एंड पी आर ऑल्सो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 है। राइट, अब इसके आगे कोई पॉइंट ही नहीं है तो यहाँ पे और आगे आने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ तक आऊंगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5, और इसके आगे कोई पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब योर ए इज इक्विडिस्टेंस विद सी एंड पी इज इक्विडिस्टेंस विद वी विद रिस्पेक्ट टू योर पॉइंट बी। ठीक है, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट A and C, point A and point C. Point A and point C are equidistant from point B, which is at a distance of 2 यूनिट। ठीक है, 2 डिस्टेंस पे हमें क्या दिया हुआ, पॉइंट ए एंड सी। करेक्ट, एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, पी एंड बी। राइट, बिकॉज फ्रॉम पी, फ्रॉम पॉइंट बी इफ यू गो 4 यूनिट यू गेट पी, यहां से अगर हम 4 यूनिट जाएंगे तो यू गेट बी। सो क्या लिखेंगे, आप लिख दो पॉइंट पी एंड point B are equidistant from point B, from point B which are at a distance of 4 यूनिट। राइट, तो ये दोनों हमारे पॉइंट हो गए। करेक्ट, नेक्स्ट सेकंड क्या दिया हुआ है, राइट द पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q। सेम चीज है बट इस टाइम पे पॉइंट कौन सा लेना है, Q। करेक्ट, सो Q के इक्विडिस्टेंस, अगर मैं Q से 1 यूनिट जाता हूं मुझे क्या मिल रहा है, U, और यहां से 1 यूनिट जाता हूं क्या मिलेगा, L। इट मींस माय U एंड L आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q। सिमिलरली अगर मैं इधर जाऊंगा 2 यूनिट, आई विल गेट R। If I go 2 unit this side, I'll get P. It means P and R are also equidistant from point Q. और आगे कोई पॉइंट्स नहीं तो आगे जाने का मतलब नहीं बनता है।
सो यहाँ पे भी 2 पॉइंट आएगा, राइट। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पॉइंट U and point L. U and L are equidistant from point Q, right? Which are at a distance of 1 unit. Which are the distance of 1 unit from Q. ऐसा लिखेंगे। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, R with P. तो क्या लिखेंगे, पॉइंट R and point P. R and P are equidistant from point Q, which are at a distance of 2 units. Right? So this is the answer for question number 6, 1 and 2. थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ QV, PC, DB एंड UL. सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। सिमिलर क्वेश्चन में किया है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, राइट। कर ले, सॉल्व करें। क्या है हमारा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ U एंड V, राइट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट। तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ U is, U का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, -5. देन कोऑर्डिनेट ऑफ V is, V का कोऑर्डिनेट में क्या दिया हुआ है, 6. so this is 6. since 6 is greater than -5, therefore distance of between U and V is 6 minus of -5 equal to 6 plus 5 equal to 11. So distance between U and V is 11. That's your first one. Second, distance between P and C. क्या लिखेंगे, coordinate of P is, P का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -2 लिख दो। सिमिलरली लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ C is, C का कोऑर्डिनेट कितना दिया आपको, 4. क्या है यहाँ पे, since 4 is greater than -2, therefore distance between P and C is 4 minus of -2. 4 plus 2 which is 6. So this is the distance between P and C. है ना सिंपल। इसको देख लो आप, क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ V is, V का कोऑर्डिनेट कितना है, 6 and then कोऑर्डिनेट ऑफ B, B का कोऑर्डिनेट कितना दिया आपको, 2. यहाँ लिख दो, since 6 is greater than 2, therefore distance of between BB is 6 minus 2 which is 4. So that's my distance between B and B. इसका देख लो, तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ U is, U का कोऑर्डिनेट हमें कितना दिया अगेन, -5. कोऑर्डिनेट ऑफ L is, L कितना दिया आपको, -3. यहाँ -2 कितना आएगा, -3, राइट। अभी which one is greater, -3, right? So -3 is greater than -5. Therefore distance between U and L is -3 minus of -5. So -3 plus 5 is your 2. So this is the distance between U and L. So this is all about your question number 6 and third question. If you want to write it down, just take a screenshot. So दोस्तों, अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आई, so please do like and subscribe. Thank you.